Good morning. Good morning. तो any sharing from yesterday? किसी को कुछ बोलना है? तो glad game किसने किसने खेला कल? WhatsApp के अलावा? Khela nahi, but yesterday was not one of the best days. My mom-in-law perhaps is challenged with COVID. So we're still trying to figure out. So it was an interesting day, but then I was trying to figure out, obviously, a lot of thoughts come. But beech mein bolte ja rahe the, but I'm glad. So that is how it was. So I think we have to make a consistent effort to remember, because negative thoughts aayenge, especially in situations like this. So that's what I kind of took it for myself. Ki, haan, theek hai, aayenge, but stay positive and see And COVID से deal करने के लिए तो 110% we have to stay positive. 110%. So it's a necessity. So in such a negative situation, you were trying to find positive things, and I hope you did found also, right? means, see, it helps. Personally, I think it helps me deal with it, and then it also helps the people around me deal with it. So, but यही है कि मतलब कि जितना positive रहोगे उतना ही अच्छा है. So try and figure out the best way out and not look back in the past, but move. Anyone else? How was it playing the glad game yesterday? Minaldi, sweetie here. Good morning. Yes. Good morning. Okay, so the game was good. I इतना काम था ऑफिस का, but still I was like, मेरा दिमाग वहीं जा रहा है. I should play. I should respond. Something beyond you should think. But I would like to share something. Yes. On the sessions, I'm not talking about a particular session, but till now I'm talking about what has happened right now. Okay. So yesterday, after a long time, I was listening to radio and I was working. And earlier क्या होता था ना, so it used to be like some songs, make you go in the past or एकदम पूरा, reflect memory, throw up some good मतलब good बोलो या bad बोलो जो भी है, some memories used to come and you used to become very emotional, right? And same thing, I was all in a joyful mood and ऐसा कुछ song आया and I really became, मतलब मेरे को वो song आया और बस मुझे पता है वो song आया, पर वो कब आकर के गया, I have no idea, because I didn't feel anything. And I was like thinking, wow, this is good. I am grateful that I forgot everything and I'm like going like beyond whatever I used to think earlier. Start going with the flow. मतलब आप song में फिर वो sadness नहीं रहता है. हो सकता है कोई song हमें कोई चीज से connect करता है and then we feel sad about it, right? But when you start being grateful, you start enjoying the song as it is. Correct. Yes. So It that happens. was the experience yesterday. I was feeling, apart from all the other, which that's what Abhi Minaldi boli na ki it is hard to remember small things, but yeah, definitely this was like something very small probably, but for me it was a big thing because I didn't get upset listening to some songs yesterday. Yes. There will be a lot of changes in 28 days. अभी तो हम starting के first हफ्ते को cross किए हैं, एक हफ्ता हुआ है खाली. So we still have 3 weeks to go. तो हाँ, आप complete sharing भी कर सकते हो कि when you started and till now, how you're feeling now. Are there changes in you? मतलब
खुद में आप चेंजेस देख रहे हो? See, I could feel it, but अभी सबसे पूछना भी पड़ेगा ना घर पे कि what is like, are they seeing it or not? No. Don't ask. Please don't ask. वो सामने से चला के आपको बोलेंगे. Wait for that moment. Because see, if you ask, no, you're forcing someone to see something which might not be there, and then you might go below the line. अगर सामने वाले ने आपको सही मतलब उसे अगर नहीं लग रहा है and he says or she says to you कि नहीं ऐसा तो कुछ मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे अंदर में, then you will be wondering कि यार मुझे फील हो रहा है तो इसको क्यों नहीं फील हो रहा है. तो don't take that chance, don't give yourself that doubtful thing कि नहीं हुआ अब मैं क्या करूं, मेरा तो हो जाना चाहिए था एक हफ्ते के अंदर कुछ चेंज, लेकिन नहीं हुआ. सो जस्ट लीव इट, जस्ट गो विद द फ्लो. लेट अदर पीपल्स अराउंड यू टेल यू कि यस यू हैव चेंज्ड. आपकी जो एनर्जी है वो जाएगी ही जाएगी सामने वाले के पास में. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगी, और सामने वाला आपको बोलेगा. जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट and then you can feel the happiness, more happy you will be. If someone else tells you apne aap, don't go out asking people. Okay? Sure. Anyone else? Good morning, Ranjana. Good morning, Yesterday I Ranjana. played this after my yoga session with my students, and it was Yes. really good. वो सबकी आवाज में ना सडनली जब पूछने के बाद वो एक लाइक वो काइंड ऑफ एक हैप्पीनेस या एक एंथुसियाज्म होता है ना, वैसे आ गया. So first they started with yoga, then I told them, no, tell me something else what you're grateful for. So it was good, like, everybody, it was a nice response. Or it was a really nice feeling. And kal as like, forced ourselves not to gossip. So literally I'll tell you, मैंने कोई ऐसे cause नहीं किए जो I know with my friends or my cousins मैं बहुत like I'll discuss people. I didn't make any call. I just refrained from that. And plus पूरे दिन अच्छा था. Like, I just tried to control anything जो भी negative मुझे जो irritate होता है मुझे बहुत usually. I just tried, to search other part that at least I'm glad this happened. And really, it was a good, peaceful day yesterday after long. But I don't know, I have one thing. मैं जितना ट्राई करती हूँ उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, आई सी इट रिबाउंड्स और ज्यादा होके आता है. बट yesterday was good that after that finally I didn't even respond to that big rebound also. But फिर भी मैंने बहुत नोटिस किया. I'm trying this from ages, you can say, to improve on some relationship. But फिर भी ना वो हमेशा रिबाउंड होता है. I don't know why this. एक बार के लिए it pulls you down, but this time literally I was not pulled down. Again मैं उसको भी handled it nicely. I don't know why it is with everyone और क्या है पता नहीं. आप जितना कोशिश करते हो उतना सामने आता है वो. आप रिलेशनशिप के लिए चिंतित हो ना, तो अभी वी आर इन द फर्स्ट वीक, सो दिस बुक विल टेल अस अगेन हाउ टू गो अबाउट सर्टेन रिलेशनशिप which are not good or which wants you to work on certain relationship. So just wait for the book to tell us, unfold its mysteries to us. और तब तक जो आप जैसे अभी past relationship को अपना gratitude दे चुके होंगे, जैसे when you picked 3 people, 3 photographs and you did that. तो जब उस दिन आपको कैसा फील हुआ था उस रिलेशनशिप को करते हुए, रंजना जी? How did you feel then? एक्चुअली मतलब बाकी सब रिलेशन मेरे बहुत अच्छे ही. एवरीबडी ना वेरी एक्चुअली क्लोज. मैं बहुत पर्टिकुलर फ्यू लोगों से क्लोज हूँ विथ होम आई फील आई शुड शेयर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ. तो उन लोगों से लाइक कभी ऐसे कुछ आया नहीं, तो आई डिडंट फील दैट पार्ट सो मच. बट कल का लाइक जो भी है, इट इज जस्ट 1 or 2 थिंग्स इन माई लाइफ. अदरवाइज टचवुड एवरीथिंग अब दस ऑल रिलेशंस आर वेरी गुड. तो इसलिए वो तब इतना नहीं फील हुआ. मे बी लेट्स सी आगे. Let's see आगे. As I feel that if you enter this gratitude mode and फिर आप करोगे ना, इसमें ना आपकी feelings change होगी. Just remember everyone कि इसको करते वक्त, इस बुक को करते वक्त ना आपकी फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन विल चेंज. ओके, अब उस पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ से चेंज होती है या नहीं होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन व्हाट विल हैपन इज, जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाओगी उस पर्सन के लिए, एंड देन यू विल रियली लेट गो ऑफ थिंग्स. मतलब आपको एक पॉइंट आएगा जब आपको फर्क होना बंद हो जाएगा कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है. आपकी फीलिंग ऐसी हो जाएगी कि मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ ना उसके लिए, अब सामने वाला मेरे लिए बुरा सोचे या अच्छा सोचे, दैट इज हिज प्रॉब्लम, हिज ब्रेकडाउन. सो वी विल वर्क ऑन दैट. अल्टीमेटली यू आर अचीविंग कि आपके साथ वालों की फीलिंग्स आपके पास में कैसी है.
तो दे शुड बी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हर चीज के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, फॉर रिलेशनशिप, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेल्थ, फॉर योर वर्क स्पेस, यू हैव टू बी पॉजिटिव फॉर ऑल दिस थिंग्स। सामने वाला आपको कैसी भी दे, कैसा भी फीलिंग्स दे, इट इज देयर breakdowns. Okay, Yeah, so thank you. the book will be working on us. We will not be dealing with the other people physically in any chapters. Just remember that कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई चैप्टर में मुझे ऐसे आएगा कि मैं सामने वाले को लेके वर्क करूंगा, तो नहीं, ये बुक आपको खाली या तो फोटोग्राफ्स या इमेजिनेशन से ही वर्क कराएगा और लिखवाएगा. What it will do is ultimately it will make you let go of things. आपको अगर कोई ग्रज है किसी के लिए, किसी ने आपको कुछ किया है, तो यू विल लेट गो ऑफ दैट थिंग. ओके, Yeah, thank you. मोस्ट वेलकम. शिखा जी, यू आर रेडी टू रीड? Yes, yes. Morning, Mrinal. मॉर्निंग इन हिंदी, राइट? Yeah, anything. Hindi is okay. I want to read actual in Hindi, यस, वी विल रीड इन हिंदी. but everyone will understand. हाँ, हमारी मातृभाषा है, क्यों नहीं समझेंगे? Because I have no problem. No, if someone says that they cannot understand Hindi, I will be explaining ना, तो और फिर आपके पास English PDF भी है, because see, I want everyone to have a chance at reading, okay? And Yeah. उसके बाद में अगर किसी को नहीं समझ में आता है कुछ, तो वो English PDF भी पढ़ के they can get back to me in the daytime or tomorrow morning कि हमको ये चीज़ Because नहीं there is समझ a में. difficult words, no? That's why I'm just asking. एक्चुअली आई फील कि इंग्लिश हिंदी क्वाइट सिमिलर है, इसमें थोड़े बहुत आते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, तो आई एम सिटिंग विथ माय बुक इंग्लिश में, तो आई विल रिफर उसी समय कि क्या बोल रहा है. हो सकता है वी विल टेक अ 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टुडे बिकॉज ऑफ हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम, बट इट विल बी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. दैट इज व्हाट आई फील. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग देन. So what do you see on the, what are you seeing, Shikha ji, on the screen? The There is a picture. there is a one picture. There is a one tea mug, one saucer, and some biscuits, yeah, toast, and one spoon and sparkles. Yes. So there's tea also in the mug, right? Yeah. So today we will be talking about our food and drink. See, हमने काफी कुछ कर लिया है. अब now we have come down to the basic necessities. तो आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना और पानी पीना. ये है हमारा two basic necessity of life. तो today we will be talking about that, and उसमें कैसे हम magic create कर सकते हैं. The sparkling effect is for that. हम जहाँ पे भी sparkling effect देख रहे हैं chapters में, that means कि वहाँ पे magic create हो रहा है, या we will create हमारे gratitude से. Okay. Now, can you read? Just 1 minute. Starting से नहीं है क्या? ये है ना 8वां दिन जादुई तत्व. Just one. Yeah. Yes. 8वां दिन जादुई तत्व. Yes, कृतज्ञ. एक सेकेंड. तत्व यहाँ पे इज इंग्रेडिएंट, तो इट इज मैजिकल इंग्रेडिएंट. ओके, सो कंटिन्यू प्लीज. कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है. W.J. कैमरॉन 1879 to 1953, पत्रकार और व्यवसायी. हाँ, तो ये हमें बोल रहा है कि जो द हार्ट विच इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट कंटिन्यूअसली इट पार्टीज. ओके, दिस इज द इंग्लिश मीनिंग. मतलब कि आप, अगर आपके पास में कृतज्ञता है, आपके अंदर में कृतज्ञता है, इफ यू आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो आपको कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है. यू आर इन कंटिन्यूअस सेलिब्रेशन मोड. आप हमेशा खुश रहेंगे. हम खुश रहेंगे तो आप हमेशा पार्टियां ही करेंगे. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस लाइन. यस, प्लीज कंटिन्यू. भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चल रही है. प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल
अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। Yes. So just how many of us are already paying gratitude to our food and drink before we eat? हम शायद मतलब जैसे मैं जब बड़ी हो रही थी तो मुझे ये सिखाया गया था कि थाली पे बैठने से पहले, भोजन करने के पहले we have to say thank you to our food. चाहे आप एकदम क्लियरली हाथ जोड़ के हम थैंक यू बोले या मन ही मन हम बोले कि थैंक यू, हम या तो हाउ मेनी ऑफ अस, क्या शिखा जी आप करते हो ये चीज? हाँ, मैं करती हूँ, कभी Yes. कभी भूल भी जाती हूँ लेकिन Yes. करती हूँ। हाँ, तो ये इवन आई हाँ, डू, हमको कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया था, सो फ्रॉम दैट टाइम लाइक वो आदत ही हो गई, कुछ भी खाओगे ये थैंक यू गॉड फॉर फूड वी ईट, वो एक लाइन आ ही हाँ जाता है मुंह में, हाँ देन वी स्टार्ट, सो आई डू इट एवरी डे। अच्छा। एंड पानी को इवन मी, अब पानी को कितने लोग करते हैं? मैं पानी भी, को तो नहीं किया मैंने। यस, तो मैंने हाँ, इट्स तो नॉट इवन मी बस वो एक को खाने के टाइम आ जाते हैं थैंक यू गॉड फॉर फूड वी ईट हाँ करने ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। खाने को हम लोग करते हैं, पानी को हम लोग भूल जाते हैं। तो आज से हम पानी को भी करेंगे। क्यों करेंगे अभी हमें पता चलेगा कि बुक से कि व्हाई वी विल बी ग्रेटफुल टू वाटर आल्सो। इन फैक्ट हमारा जो, जैसे आई एम अ फॉलोअर ऑफ कृष्णा, और जो हमारी संप्रदाय है बल्लभ कुल हम उसे बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी वेयर, इफ एनीवन इज फेमिलियर विद इस्कॉन, तो इस्कॉन में बीड्स का एक माला होता है जो पीपल वेयर अराउंड देयर नेक, एंड इट इज वेरी थिक, यू इट इज वेरी मच विजिबल। लेकिन हम भी वैसा ही माला पहनते हैं, तो हमारी आदत होती है कि हम जो भी खाते हैं या पीते हैं हम उस माला से टच करके करते हैं। इट इज लाइक कि वी आर ऑफरिंग इट टू द गॉड फर्स्ट एंड देन वी आर हैविंग इट। तो ये हम लोग में इनबिल्ट होता है। बट बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं, आई जस्ट स्टॉप, मतलब रिसेंटली कभी किया कभी नहीं किया, हार्डली मैटर्ड वाला पोजीशन में आ गए थे। बट ये बुक करने के बाद में नाउ विथ एवरी सिप ऑफ वाटर आई से माई ग्रैटिट्यूड। एक्चुअली ये बुक इतना नहीं बोलती है जितनी पावर बोलती है। पावर के अंदर आता है ये। सिंस आई हैव डन पावर आल्सो, आई एम टेलिंग यू पीपल कि एवरी सिप ऑफ वाटर शुड बी थैंक्ड फॉर एवरी सिप। तो आप अगर कर सकते हो तो करो, ये प्रैक्टिस स्टार्ट करो आज से, एंड यू विल नो द डिफरेंस। ओके, चलिए। अब तो इसमें यही बोल रहा है कि इतनी सारी जो सभ्यता और संस्कृतियां हैं हमारे आसपास, हिंदू संस्कृति को आप छोड़ दीजिए, बाकी संस्कृतियों में भी पानी और भोजन को बहुत महत्व दिया गया है। इट हैज बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी कि यू हैव टू थैंक। ओके, यदि आप समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लगी थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थीं, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की ही आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हाँ, तो अब चलिए हम बात करते हैं फास्टिंग की। सो हाउ मेनी पीपल लाइक फास्टिंग? यहाँ पे मतलब वो मन से करते हैं, दे डोंट फील एनीथिंग। मी Yeah, so you do it with your heart, okay? या Now there are people like me also, जिनका मतलब अगर फास्टिंग आने वाला रहता है तो पहले ही दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है। आई एम वेरी वीक, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है, बिकॉज ये जितनी फीलिंग्स यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है ना, उतना सब मेरे साथ होता है। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि कल तीज का व्रत है या कल करवा चौथ का व्रत है, तो आज से आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि अरे यार कल कुछ खाने नहीं मिलेगा, अब क्या करना है उसके लिए, कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ। मतलब इट नीड्स प्रिपरेशन फॉर मी, आई कैन नॉट स्टे हंग्री। तो दे आर पीपल लाइक मी ऑल्सो, दे आर पीपल लाइक यू ऑल्सो। तो बेसिकली दिस बुक इज टेलिंग अस कि हम बहुत बार होता है कि अच्छा वी आर नॉट फास्टिंग, बट वी हैव बीन हंग्री फॉर लाइक 10 hours 11 hours एंड वी नीड फूड एंड वाटर, मतलब हमारा दिमाग वही सोच रहा है। तो उस समय वी विल फील
कि हम सोच ही नहीं पा रहे किसी और चीज के बारे में. वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट फूड फूड फूड, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा. स्पेसिफिकली जब हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं ना इंडिया से, एंड वी सर्च फॉर फूड, ये फीलिंग्स बहुत लोगों के साथ होती होगी कि इंडियन फूड तो मिलेगा नहीं, अब यहाँ पे हमें कुछ ढूंढना है लेकिन वेजिटेरियन चाहिए. हम आई सपोज वी ऑल आर वेजिटेरियंस यहाँ पे, आई विल टेक दैट फॉर ग्रांटेड, एंड वी नीड वेजिटेरियन फूड. अब उसको खोजना और फिर उसमें उससे खाना, मतलब इट बिकम्स हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम उस टाइम पे कि हमको तो चाहिए ही चाहिए खाना. अब कहाँ मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी सेकेंडरी हो जाता है कितनी बार, कि बस हमें दे दो वेजिटेरियन, हमें कुछ भी दे दो. हम हमारे सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है उस समय. हम कितनी बार आपने सुना होगा कि हम कोई बोल रहा होता है कि आई कांट थिंक राइट नाउ, आई नीड टू ईट फर्स्ट. ये बहुत कॉमन फ्रेज होता है लोगों के पास में कि आई नीड टू ईट और आई नीड टू ड्रिंक समथिंग फर्स्ट. ओके, तो ये यही बोल रहा है कि जब हम नहीं खाते या पीते हैं, सी एवरीवन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद नॉट ईटिंग एंड स्टेइंग स्टेइंग फॉर लॉन्ग आवर्स. आप भी शिखा जी, अगर आपको पता है कि ठीक है आप फास्टिंग कर रहे हो बट आप फास्ट ब्रेक तो करोगे, तो ऑब्वियसली यू वेट फॉर दैट मोमेंट, राइट? कि या हाँ. डेफिनेटली. हाँ, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप कैसा भी करो बट अल्टीमेटली यू विल थिंक अबाउट फूड एंड वाटर. नहीं, पहले फूड ही हम फूड पे करते हैं कॉन्सेंट्रेट. वी विल थिंक अबाउट द फूड कि कब मिलेगा यार खाना, क्योंकि आप सोच नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो क्या हो रहा है आपके पास में. शायद आप शिवर करना शुरू कर दो, शायद आपका जो फीलिंग्स है वो पूरा डाउन चला जाता है कि खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है. द वन यू जस्ट थिंक, कीप थिंकिंग अबाउट द वन थिंग. ठीक है, आगे चलिए. भोजन के लिए भोजन की भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया. आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीने तक उनकी रक्षा करनी पड़ी. तब कहीं जाकर वे काटने के लिए तैयार हुईं. फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे. यस. तो अब ये बुक हमें सीधा इकोनॉमिक्स पार्ट में लेके जा रहा है कि कैसे हमें हम सब कुछ उगा, द फार्मर्स से लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाकर कंज्यूमर्स तक पहुंच गया है. तो इट इज बेसिकली कि हम जब कुछ खा रहे होते हैं ना, तो वी शुड थिंक कि ये कैसे उगा होगा, कैसे किसान ने मेहनत की होगी इसे उगाने में, उसके बाद में इसको फसल को काटी होगी, उसे प्रोसेस किया होगा द वे दे आर सपोज टू बी डन, एंड देन उसको पैक करके उसके बाद में अगर वो गेहूं है सपोज करिए, तो गेहूं को उगाने से लेके उसे काटने तक का पूरा आप इमेजिन कर सकते हो. उसके बाद में वो जब कट के स्टोर होता है, फिर वो आता है अपने पास में, फिर हम उसका आटा पिसवाते हैं. तो वो आने तक में कितने जन लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स लगते हैं, पैकर्स लगते हैं, मूवर्स लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचाने में. तो उसमें हम लॉरीज आती है, लॉरी ड्राइवर्स आते हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड तब जाके वो गेहूं हमारे पास आता है. हम मेरे घर पे अभी तक भी, इनफैक्ट बैंगलोर में बहुत घरों में अभी तक भी वी बाई द व्हीट एंड देन वी गो टू द चक्की और हम उसका आटा बनवाते हैं, एंड देन वी अगेन ब्रिंग इट होम, फिर हम उसे छानते हैं, देन वी स्टोर इट. आजकल कुछ मशीनें ऐसी होती है जिनसे छानने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट ठंडा किया एंड वी कैन स्टोर इट. तो हम अभी तक ये चीज कर रहे हैं. एंड बहुत लोग होते हैं कि दे जस्ट बाय द रेडीमेड आटा. तो जब आप रेडीमेड भी खरीदने जा रहे हो तो वो इतना सब कुछ हो गया है, वो किसी फैक्ट्री में गया है, फैक्ट्री में जाके वो पीसा गया है, फिर उसके पैकेट्स बने हैं, फिर उसमें वो लेबलिंग का पैकेट्स बनता है, उसके बाद में वो सील होता है, तब जाके वापस से ट्रांसपोर्ट होता है, वापस से दे कम टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन वहां से शॉपकीपर्स पे आता है, होलसेलर्स में जाता है, देन रिटेल्स में आता है, तब कहीं जाके आप उसे खरीदते हो. उसके बाद भी वहां पे स्टॉप नहीं हुआ, वो घर आने के बाद भी यू आर मिक्सिंग वाटर इन इट, and then you are making falkas out of it, you are using the gas, you are using
your energy in making it, and then you are consuming it. तो मतलब इतना सब कुछ हुआ है and आप just उसको खा लेते हो. तो डू यू फील ग्रेटफुल अबाउट इट कि कहाँ से कैसे ट्रैवल करके वो कहाँ से कहाँ तक आ गया एंड देन यू आर कंज्यूमिंग इट. जस्ट थिंक अबाउट इट. ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दिया है, ऐसा आप सब चीज में कर सकते हो. अगर एप्पल है तो एप्पल के ऑर्चर्ड्स होते हैं, वहां पे वो एप्पल लगता है, उसको पिक करते हैं, देन दे सेग्रीगेट, then they pack it, then it come in the market through transportation, then they come to the distributors, wholesaler, retailers, and then finally you get to buy it, then you cut it, and then you eat it. There are so many steps to everything. Now the whole of our country celebrates हार्वेस्टिंग. क्यों? व्हाट इज द रीजन कि हमारे कंट्री में हर एक रीजन का अपना एक हार्वेस्टिंग सीजन का सेलिब्रेशन है. डू वी नॉट सेलिब्रेट हार्वेस्टिंग? कितने फेस्टिवल्स होते हैं. आई मीन आई थिंक इफ यू गो तो पोंगल इज देयर, इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इफ आई रिमेम्बर. एंड देन कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल्स हार्वेस्ट फेस्टिवल्स का? Assam में it is Bihu. Yes, Bihu is there, right? And Basant Panchami, I think, is also a harvest festival, sort of. Vaisakhi it is called. Vaisakhi is there. So there are so many festivals. हम क्यों celebrate कर रहे हैं harvesting को? In fact, अगर आप internet पे देखोगे तो even Holi is considered to be a harvesting festival. We have made it the color festival right now, but it is उस time period पे आता है होली जब when you are entering the harvest season. You are out of the winter season and you are trying to enter the harvesting season. Matlab you will now sow your crops, that is crops. So that is also a kind of harvest festival. So there are so many festivals in India itself जहाँ पे हम harvesting celebrate करते हैं. Now अगर हम अमेरिका चले तो अमेरिका में अभी just गया है उनका harvesting festival. Can anyone name it? Thanksgiving. Yes. Thanksgiving is actually a harvesting festival for them. ठीक है, हम आगे और बात करेंगे थैंक्सगिविंग के बारे में. जस्ट रिमेंबर कि हम सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इन मैनर्स. मतलब हर रीजन, इंडिया में तो एटलीस्ट हर रीजन सेलिब्रेट करता है. वर्ल्ड ओवर में आई हैव नॉट डन माय रिसर्च इतना ज़्यादा बिकॉज आई डिडंट फील इट नेसेसरी. बट थैंक्सगिविंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल क्योंकि वो एकदम सामने से होता है. आजकल बहुत फेमस हो गया है थैंक्सगिविंग भी. ठीक है, आगे चलते हैं. मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय काफ़ी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं. दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत आर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है. यह सब काम करता है जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफ़ी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं. यस, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बिहाइंड द सीन्स. जैसे कि मैंने बोला कि एक गेहूं को आप तक पहुंचाने में आटा के फॉर्म में क्या क्या होता है, वैसे ही दिस बुक इज टेलिंग अस कि सब चीज में आप जहाँ देखोगे, वेदर इट इज चाय कॉफी के गार्डन्स, वेदर इट इज कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किसी भी चीज का, बिस्किट्स, यहाँ तक कि ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी को भी ले लीजिए आप, तो उसमें कितने लोग लगते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे. आटा कहीं से आता है, उसके बाद में वो बिस्किट्स बनते हैं, तरह तरह के बिस्किट बनते हैं. उसके लिए पहले उसका आटा लगता है वहाँ पे मशीनों में. देन दे गिव द डिजाइंस एंड ऑल एंड देन दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इट. देन द पैकेजिंग हैपेंस and then the distribution happens, then the wholesalers, then the retailers, and then you get that packet to consume. तो इतना ज़्यादा ये सुंदर तरीके से they have just organized everything. किसी की तो मेहनत लगी है ना इसमें हम तक पहुंचाने के लिए, कोई तो कर रहा है. तो just remember that कि कितना कुछ होता है तब जाके आपको कुछ खाने पीने की चीज आपके हाथ में आती है.
ना कुछ। जैसे एक हम म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा अगर अटेंड करें तो कैसे एक आदमी सब कुछ संचालित करता रहता है एंड द पीपल आर प्लेइंग देयर म्यूजिक, कभी हारमोनियम बजता है, कभी गिटार बजता है, हारमोनियम नहीं गिटार बजता है, कभी ड्रम्स बजते हैं, तो द वे इट गोज, वायलिन है तो ये है वो है, एक जन के इशारों पे, तो यहाँ पे वो इशारा भगवान का होता है एंड पीपल स्टार्ट वर्किंग, लाइन से सब कुछ हो रहा है और आप तक सामान पहुंच रहा है। अब आप सोचो जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या हुआ था, लॉकडाउन में सबसे पहले हम लोगों की क्या फीलिंग आई थी, जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया कि कल से लॉकडाउन है, व्हाट वी डिड फर्स्ट थिंग क्या किया था शिखा जी आपने? शिखा जी हाँ, क्या आ, मृणाल? हाँ, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था इंडिया में, जब मोदी जी ने हम्म लॉकडाउन अनाउंस किया था तो हम्म आपने फर्स्ट चीज क्या की थी? सारे ग्रोसरीज एंड ऑल जितना भी था सब स्टोर किया था। यस, सो व्हाई वी डिड दैट, मतलब हमको हम हमको क्यों इच्छा हुई कि हमें सबसे पहले जाके ग्रोसरी लाके घर में रखना है, बिकॉज वी नो कि अगर खाना नहीं मिला तो हम कितने लोगों को अपने घर में कैसे फीड करेंगे बाबा, कहाँ से लाऊंगा मैं या खाना? इट्स ट्रू। इट्स अ ट्रू फीलिंग, एवरीवन हैज गॉन थ्रू इट, इट इज ओके। अगर आप छोटे हो तो शायद आपको फील नहीं हुआ होगा, देवांशी को इतना इफेक्ट नहीं हुआ होगा बिकॉज उसके पेरेंट्स उसके लिए चिंता कर रहे थे कि मुझे खाना लाना है। बट यस, अगर आपका कोई फेवरेट चीज है, जैसे आप सपोज करिए कोई चिप्स खाते हो, तो आपके अंदर में ये फीलिंग जरूर आई होगी कि यार ये लॉकडाउन में तो मुझे ये चिप्स मिलेगा ही नहीं, चलो मम्मी को बोलते हैं कि ये चिप्स ला के स्टोर करो मम्मी, मुझे तो चाहिए। तो यस, दिस इज नॉर्मल फीलिंग, सबको फील हुआ होगा। तो खाना पीना कितना इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट अभी तक हम समझ रहे हैं। अब आगे बढ़िए शिखा जी। भोजन भोजन एक उपहार है, यह यस प्रकृति का। यस यस, ये हाँ, ये प्रकृति का उपहार है, इट इज अ गिफ्ट बाय नेचर टू अस। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो रॉबिन्सन क्रूसो में चले जाइए सीधा। रॉबिन्सन क्रूसो इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि इस बुक में अभी तक उसने जो जो बताया है इस बुक में, he is alone on the island, he doesn't have any relationship, he has no wealth there, he has no food there, तो वो कैसे कैसे करके he survives, सिर्फ एक इच्छा के कारण कि सम डे ही विल कम आउट ऑफ इट एंड ही विल मीट एवरीवन, एंड उसके लिए वो क्या क्या करता है वो उस बुक पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कैसे एवरीथिंग इज रिलेटेड एंड कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। दिस इज अभी मुझे बैठे बैठे आया है, आई हैव नॉट रिसेंटली रेड द बुक, बट अचानक से मुझे लगा कि रॉबिन्सन क्रूसो इज अ बुक विच हैज एवरीथिंग इन इट अबाउट द दिस काइंड ऑफ स्टफ, कि वो कैसे उगाता है, कैसे क्या करता है, कहाँ से बीज लाता है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। सो यस, ये प्रकृति का उपहार है, बिकॉज ही इज ऑन एन आइलैंड ही इज एबल टू डू एवरीथिंग, because he has that island ka, he has that water, he has some fruits with him available, so he is able to form the his survival techniques. But मुझे इतना याद है कि he does grow, he starts growing stuff अपने आप वहाँ पे। हाँ, क्योंकि यह प्रकृति का उपहार है क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़क बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। आगे पढ़ूं? हाँ, लॉरेन एस्ली, यहाँ तक पढ़ लीजिए, नाम पढ़ लीजिए। ओके, लॉरेन एस्ली 1907 to 1977 मानव विज्ञानी
और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। Yes. तो अब हम खाने के बाद we have reached the water part. See, water से ही everything has been possible. Our body is also 70% water. ये जो भी बायो पढ़ा है या when we study we will come to know कि our body is 70% water. उसके बाद में earth is also 70% water. चाहे वो salted water ही है लेकिन water है. तो why water is so important, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं reasons कि क्या क्या पानी के कारण ही हमारे लिए possible होता है. In fact, the room you are staying in, the house you are staying in needs water to be made. कैसे है वो पता ही है, सीमेंट में you need to mix water. उसके बाद में जब आपके बन जाते हैं, सीमेंट आप डाल देते हो तो भी आप उसमें पानी डाल के छोड़ते हो. अगर किसी ने घर बनते हुए देखा है तो they will know कि वाटर कितना जरूरी होता है घर बनाने में भी. चाहे कच्चा मकान हो चाहे पक्का मकान हो, you need water. फिर कहाँ कहाँ पानी जरूरत है. आप सोचो आपका फ्लश काम नहीं कर रहा है, आप बाथरूम गए आपका फ्लश काम नहीं कर रहा है. So how will you feel? You will be disgusted in some few minutes and some hours only. किसी आप कहीं जाते हो कोई पब्लिक बाथरूम में and the flush is not fucking, मतलब सबसे पहले तो आपको वो फीलिंग आती है कि यार यहाँ से निकलो, बास आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. It's because पानी नहीं है वहां पर. That is the only reason कि पानी नहीं है वहां पे. इसके लिए अगर पृथ्वी पर कोई जादू है, if there is magic on the earth, वो water के अंदर है. It is inside water. This line is there. If there is magic on this planet, it is contained in water. तो ये बहुत जरूरी है कि आप पानी की अहमियत को समझिए एंड उसे वेस्ट मत करिए. हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे बुक्स बोलते हैं हमें, हमारा समाज बोलता है हमें पानी को कम वेस्ट करो. मतलब आई डोंट नो इफ पीपल नो बट जैन समाज में अगर उनको आधा ग्लास पानी पीना रहता है तो दे टेक हाफ अ ग्लास ओनली. दे विल स्पेसिफिकली टेल यू कि नहीं मुझे आप पूरी ग्लास पानी मत दो, मैं हाफ ग्लास में ही खुश हूँ बिकॉज आई विल नॉट वेस्ट वाटर. वॉट एवर विल बी देयर रीजंस, वो अलग एक साइंस है लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे अभी. बट दे डोंट वेस्ट. बेसिकली वो पीने के टाइम पे भी पानी वेस्ट नहीं करते हैं और हम तो टैप खुला छोड़ देते हैं. शावर्स को पता नहीं, साबुन लगाने के टाइम भी शावर ऑन रहता है. वी हैव सो मेनी वेज ऑफ वेस्टिंग वाटर. इट इज मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल. एंड वो पानी जो मीठा पानी है, जस्ट इमेजिन इफ इट इज नॉट देयर एंड यू हैव ओनली सॉल्टेड वाटर इन योर लाइफ अराउंड यू, हाउ विल यू फील? How will you feel? Just imagine. और आप अपना खुद श्रीलंका निकाल. टूर पे गए थे तो वहां पे ऐसा ही था. वहां पे पूरा समंदर है तो खारा ही पानी है. पीने का पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध रहता है. तो हाँ, जब भी कोई हम जाते थे खाने पे या कहीं, तो जब भी पानी मांगते हैं तो वो पूछ के देता है हाफ ग्लास. डू यू नीड वाटर ऐसे पूछता है वो. अगर चाहिए तो ही देगा वो, नहीं तो नहीं. जैसे यहाँ अपने यहाँ जाते ही होटल्स वगैरह में पानी की ग्लास लाके रख देते हैं, वहां पे वो लोग पूछते हैं कि पानी चाहिए क्या. तो यस, अब उनके यहाँ पे वो कमी है तो शायद वो उस हिसाब से डील करते हैं. हमारे यहाँ पे नहीं है तो हम उसे इजीली ले रहे हैं. लेकिन ये याद रखिए कि हमें जो पीछे की जनरेशन आ रही है ना, उनके लिए छोड़ के जाना है. राइट. राइट. यस. अब आगे. यस. भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे. हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा. हमें यह दिन नहीं मिलेगा और न आने वाला कल भी नहीं. लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं. जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है. कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है. तो अब ये हमें बेसिकली बोल रहा है कि आप हमें भोजन और पानी को थैंक यू बोलना चाहिए. सो नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली मास ग्रैटिट्यूड. ओके, आप सबको ही अगर हम एक साथ हर दिन हर वक्त अपने भोजन को थैंक यू बोलेंगे तो व्हाट विल हैपन? मास ग्रैटिट्यूड विल हैपन. नाउ थैंक्सगिविंग is not only a festival of harvest,
It is also something else. उसमें क्या होता है, कोई बताएगा? The whole family get together and they thank each other and they will recollect कि क्यों आप उसको thank you बोलना चाहते हो, and they जो whatever is they have the dinner together. It is like that. हाँ, it's basically a harvest feast and they get together with their friends and relatives, मतलब बहुत बड़े तरीके से, and then they thank the food first. Everyone sit together and then they thank the food first, and then they do whatever Priyanka is telling maybe. So this is mass gratitude. ये अमेरिका में होता है, शायद इसीलिए अमेरिका आज सुपर पावर है. इतना ज्यादा ग्रेटफुलनेस एक दिन में अगर आप कर रहे हो तो शायद इसीलिए, शायद you might think about it seriously. Now India में we have been told again and again to be grateful to our food, but हम बहुत लोग हैं जो हम लोगों ने, जैसा कि शिखा जी ने भी बोला कि करते हैं लेकिन कभी भूल जाते हैं, मतलब it's not, it should be embedded in us but it is not anymore. We just forget about it. ऐसा हालत हो गया है कि टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट करने का, भी उठाया हाथ में रोटी एक रोल किया, खाते खाते दूसरा काम कर रहे हैं. ये है आजकल की सभ्यता और संस्कृति जो हमारे बच्चे कर रहे हैं और जिसे हम करा रहे हैं उनसे. बेटा तुम्हारे पास टाइम नहीं, चलो चलो फटाफट खा लो, हाथ में ले लो, खाते रहो, बैठ के भी खाना नहीं खा रहे हैं. अच्छा, ये भी संस्कृति आप देखोगे अगर आप बाहर जाओगे तो they do this also. अमेरिकन्स ही करते हैं ये भी, लेकिन आई डोंट नो कि हाथ में कॉफी का ग्लास है, एंड नाउ वी हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग, इंडियंस आल्सो हैव स्टार्टेड डूइंग. टाइम नहीं है, हाथ में कॉफी का ग्लास है, एक हाथ में खाना है, फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, क्या कंप्लेंट्स कर रहे हैं, एंड वो खाना खा रहे हैं. तो इतनी नेगेटिविटी हम दे रहे हैं खाने को कि इट इज अनइमेजिनेबल. इवन घर पे भी हम खाना खाते वक्त कोई फोन आ गया, वी विल अटेंड इट. नहीं, इंपॉर्टेंट कॉल होगा, आई हैव टू अटेंड इट. अटेंड तो आपने किया, लेकिन खाना खाते वक्त में आप किस तरीके की बात कर रहे हो फोन पर, ये आपने सोचा? नहीं सोचा. यू आर जस्ट cripping about the work, you are just complaining about your mother-in-law, you are just doing whatever you should not be doing, but you keep on doing it. खाना खाते वक्त क्यों कर रहे हो? क्या बोलते हैं बड़े, क्या बोल के गए हैं? चुपचाप खाना खाओ. खाना खाने के टाइम पे बात मत करो. बोला है कि नहीं बोला, सुना है कि नहीं सुना है बचपन में आपने? खाना खाने के टाइम बात मत करो. खाना खाने के टाइम टीवी मत देखो. टीवी इज द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू योर रूटीन. जो हम प्राय की टाइम नहीं है तो टीवी देखने के टाइम हम खाना खाने बैठ जाते हैं. ये दो काम एक साथ हो जाएगा, हम टीवी भी देख लेंगे एंड खाना भी खा लेंगे. हम कंटिन्यूअसली, मुझे मेरी दादी ने मना किया है, बट हम लोगों ने जब टीवी नया नया आया था एंड केबल टीवी आया था तो बहुत इच्छा होती थी टीवी देखने की, तो हम खाना खाने के टाइम टीवी देखते थे. अब हम टीवी में क्या देख रहे हैं? एक्शन मूवीज देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं जिसमें से मार धाड़ की बातें आती है, इसने उसको मारा, इसका ऐसा हो गया, जीडीपी डाउन चला गया. तो वो खाना खाते वक्त अगर हम वही सब सुन रहे हैं, वही सब देख रहे हैं, तो आप सोच लो कि हम कितनी नेगेटिव एनर्जी खाने को दे रहे हैं, और खाना हमारे बॉडी में जाके कितनी नेगेटिव एनर्जी हमको दे रहा है. इट इज फॉर यू टू थिंक एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये बहुत बहुत ज्यादा डीप है. मैं बोलती रहूंगी तो मैं बोलती रहूंगी, मेरे पास एग्जांपल्स है, मैं देती रहूंगी, बट इट इज फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम खाने में नेगेटिविटी भरते हैं बिना रियलाइज किए. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है. यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है. आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता ही क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी. यस, सो ये वापस मतलब उसी पॉइंट पे हम चल रहे हैं अभी तक कि अगर हम मास ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो
संसार में भोजन की कमी खत्म हो जाएगी. Everyone will have their fill. अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल इंडिया का देना चाहूंगी आप लोगों को. इफ यू पीपल हैव विजिटेड जगन्नाथ पुरी का टेम्पल, उसका अगर आप इंटरनेट पे भी देखोगे कि स्पेशल फीचर्स ऑफ टेम्पल में उसका वन फीचर इज दिस कि वहाँ पे खाने वालों के लिए भोजन कभी भी कम नहीं होता है. जो प्रसाद होता है उसके लिए दे विल नेवर से नो टू यू. वहाँ पे बड़े से बड़ा आदमी भी जाके खा सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी जाके खा सकता है. 20,000 से लेके 2 लाख लोगों तक का भोजन वो आराम से आपको खिलाता है. द टेम्पल इज फेमस फॉर दिस. वहाँ ये फेमस है उस टेम्पल के लिए, पूरी जगन्नाथ पुरी धाम के लिए, कि यहाँ पे आप जाओगे खाना खाने के लिए तो आपको कभी भी ना नहीं बोलेंगे. वो उनका प्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता है. क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, नो वन नोज. ये भगवान की कृपा है कि क्या है, आई डोंट नो. लेकिन वहाँ पे भोजन की कमी कभी किसी को नहीं होती है. यू कैन गो एनी टाइम एंड यू कैन ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ. अगर कोई गया है तो दे विल नो. एंड वन मोर थिंग आई विल टेल कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना ये लंगर के बारे में. सिक्स हैव दिस लंगर. हैज एनीवन हर्ड अबाउट इट? द सिक पीपल. हाँ. तो वो जो लंगर होता है उसमें अगेन दिस इज मास ग्रेटिट्यूड. मतलब जो बनाते रहते हैं वो बनाते रहते हैं, जो खाते रहते हैं वो खाते रहते हैं, इनफैक्ट वो लेके भी जाते हैं. उनका भी ऐसे ही चलता है. जिस दिन वहाँ लंगर लगता है वहाँ पे कमी नहीं होती है. इट इज ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड कि वो कम नहीं होगा. कैसे भी करके वहाँ पे होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा. एंड द टेस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ फूड इज ऑलवेज माइंड ब्लोइंग. आप इस्कॉन में जाके भी, बैंगलोर में इस्कॉन है तो जो बैंगलोरियंस है, आप इस्कॉन में जाके कभी वहाँ का प्रसाद लीजिए. यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मतलब इट इज ऑसम. वो जो टेस्ट है ना, वहाँ की खिचड़ी का जो टेस्ट है ना, वो आप घर में कैसे भी बना लो आपको आएगा ही नहीं. यू विल नॉट गेट दैट टेस्ट. एंड देन व्हेन यू टेक इट ना, आपके मन से दुआ निकलेगा कि जिसने ये बनाया उसको थैंक यू. मतलब आप सोचोगे कि कैसे कैसे ये हुआ. तो ये ब्लेसिंग है भगवान की हमारे ऊपर में. ये सिर्फ मैं आपको एक इस्कॉन के लिए बोल रही हूँ बिकॉज इस्कॉन इज कैन बी आइडेंटिफाइड विद ईच वन ऑफ अस हुएवर इज प्रेजेंट हियर. नहीं तो हम कहीं का भी बात करें, किसी भी धर्म, किसी भी इसके टेम्पल का या गुरुद्वारा का, या मे बी आई डोंट नो हाउ दीज mosque work. I have no idea about them. Lekin if you take the prasad from all these Hindu temples, they are different. तो मुझे याद है, my husband, he doesn't like परवल. If everyone knows परवल, it's a vegetable नॉर्थ Yes. इंडिया में ज्यादा होता है. तो वो उसे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो हम पूरी में ही थे एंड वी वर टेकिंग अ पत्तल. हमारी जो मंदिर है उसके प्रांगण में हमने पत्तल का बोला था. तो वो पत्तल आया, उसमें परवल की सब्जी थी. तो उसने बोला, वहाँ पे जो खाना खिला रहे थे उनको, उन्होंने बोला कि नहीं आप ये सब्जी मुझे बहुत कम दीजिए, आई डोंट लाइक इट. तो उन्होंने सिर्फ इतनी सी, मतलब 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून दिया खाने के लिए. एंड वी वर ऑल सिटिंग टुगेदर, मी, माय हस्बैंड, एंड देयर वाज वन ऑफ माय जेठी वाज देयर, कजन. क्योंकि वहाँ पे नहीं था पत्तल कुछ नहीं थे, सामान नहीं था. वी जस्ट हैड टू ईट. प्रसाद लेना था एक्चुअली, एक कोरम पूरा करना था हमको कि वहाँ जाके हमें प्रसाद लेना है. एंड वी वर डूइंग दैट. तो हम बैठ गए तीनों जन वहाँ पे एंड वी स्टार्टेड हैविंग. यू वोंट बिलीव, उन्होंने जितना बड़ा एक भगोना लेके आए थे, वो सपोज करिए इतना था वो, उस परवल की सब्जी का. एंड हम लोग तीनों ने मिलके वो सब्जी चट कर दी, चट. तब आई लाइक, माय हस्बैंड डजंट लाइक, एंड वी जस्ट सैट देयर कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा ले रहा है और हमें फिर होटल जाके खाना है, प्रॉपर खाना. ओके, हमारे लिए वो प्रॉपर नहीं था, हम प्रॉपर खाना के लिए जाने वाले थे. लेकिन उसमें ऐसा जादू था, देयर वाज सच मैजिक इन दैट वी फिनिश्ड दैट ऑफ. एंड आज भी माय हस्बैंड इज लाइक, वैसा सब्जी बनाओ ना घर पे, वैसा सब्जी बनाओ ना घर पे. नहीं आता है बॉस, कैसे बनाऊं मैं, वो मैजिक है. वो उन्होंने क्या डाला मैजिक इंग्रेडिएंट वो जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ. मुझे जैसा आता है मैं वैसा बनाऊंगी, आप खा सकते हो तो खा लो. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. आप लोग के साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी कि कोई कहीं पे आपको लगा होगा कि दिस इज माइंड ब्लोइंग टेस्टी. ओके, आगे चलते हैं.
इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। तो अब ये बुक हमें बोल रहा है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड लेके आते हैं अपने खाने पीने में, तो जो हमारे ड्रीम्स है ना, वो और करीब आएंगे हमारे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रैटिट्यूड लाइए अपने भोजन में, अपने पानी में, रोज बोलिए। आप एक सिप भी ले रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो, कॉफी भी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उससे पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए एंड देन यू ड्रिंक इट। आप खाना खाने बैठते हो, आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, देन यू ड्रिंक इट। कोशिश करिए कि अगर आप घूमते फिरते एक बिस्किट भी खा रहे हो तो उसे भी आप ग्रैटिट्यूड दे के खाइए। जस्ट ट्राई दिस। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी मच पॉसिबल, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे करने में ये चीज। ठीक है। पुराने समय में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो वो इससे वह शुद्ध हो जाता था। अब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने Just a second. Preshak या Prabhav is observer's effect. See, this is basically, I will explain it first and then we will go for the reading part. This is basically कि जब कोई आपको देख रहा है तब आपका आउटपुट इज डिफरेंट, और जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आपका आउटपुट इज डिफरेंट। हम ये नहीं मान रहे हैं कि हमें भगवान हमेशा देख रहा है। हम इसमें ये क्वांटम फिजिक्स में ये जो ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, इट इज लाइक कि व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग it has a different effect, and when you don't observe it, it has a different effect. Okay. अब सपोज करिए आप काम कर रहे हो, अब आपको पता है कि आपकी सास खड़ी है पीछे, तो आपके काम करने की स्पीड, आपके काम करने का तरीका विल बी डिफरेंट। एग्री और नॉट एग्री शिखा जी? या एग्री। एंड अगर आपको पता है कि आप अकेले हो, देयर इज नो वन, मे बी यू विल डांस एंड यू विल कट द वेजिटेबल्स, मे बी यू विल बी लाइक अभी एक काटा, थोड़ी देर के बाद में दूसरा काटा। इट इज ऑन यू। लेकिन ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, इट इज रियलिटी। अगर आपको कोई देख रहा है तो आपका आउटपुट विल बी डिफरेंट, अगर आपको कोई नहीं देख रहा है तो आपका आउटपुट विल बी डिफरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। हाँ, तो अगर आप ग्रेटिट्यूड दे के खा रहे हो तो जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इट विल गो positive stuff is going inside your body. It will give you positive energy. Okay. Anything which you have not understood in this paragraph, anyone, because इसमें कुछ ज़्यादा ही words है जो हाँ थोड़ा सा ये है, तो I will just try to read it in English also. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever it is being observed. Imagine if we're focusing gratitude on your food and drinks, change their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. So this is what the English part is saying कि अगर आप उसे ग्रैटिट्यूड दे के खा रहे हो तो उसके अंदर इतना पावर होता है कि वो आपके बॉडी को बहुत अच्छे से अच्छा करने की ताकत रखता है। आई एम टेलिंग यू समथिंग विच इज नॉट इन दिस बुक राइट नाउ। वाटर इज सो पावरफुल दैट अगर आप उसे पीते वक्त उसे कोई भी कमांड देते हो तो इट इज कंपेल्ड टू डू दैट।
it goes in your body and it is compelled to do that for you. It is there in power book, जो इसके बाद की बुक है उसमें ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि वाटर इतना स्ट्रांग होता है, उसकी अपनी सोच होती है. अगर आप वाटर को ग्रेटिट्यूड देते हो, इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. सो व्हाट प्रैक्टिस वी आर डूइंग इज कि हम शावर लेने के टाइम पे, if we while showering, if we thank our body parts, it is the most effective technique of thanking. आप वाटर को यूज कर रहे हो तो वाटर को यूज करते वक्त में इफ यू आस्क वाटर कि यस दिस इज माय आइडल वेट, तो वाटर को सूनर और लेटर इट विल गिव यू. आपके फीलिंग्स जितने स्ट्रांग होंगे वाटर उतनी जल्दी असर करेगा आपके ऊपर. मैं डीप में नहीं जा सकती हूँ, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन वाटर इज वेरी स्ट्रांग विथ फीलिंग्स. ऐसा बोलते हैं कि वाटर के पास फीलिंग्स होती है. वाटर आपकी सुनता है, पानी आपकी बात सुनता है. आप जो उसे बोलते हैं करने के लिए वो करता है. अब कितनी कैसे फीलिंग्स के साथ आप इसको बोल रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन यू. बट आज से एटलीस्ट आप उससे मांगो मत कुछ भी, लेकिन उसे ग्रेटिट्यूड दो एंड शायद वो आपके मन की भी समझने लग जाए. ठीक है, आगे पढ़ूं? हाँ. भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं. जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं. प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में रखें तो उसे निगलने से पहले अपने भोजन में मुंह या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें. आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है. दूसरी ओर, अब जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद एक नाट मिनट, की आप तो यहाँ, आप कहाँ पे हो? प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए तो उसे निकलने के पहले, हाँ प्लीज हाँ, कंटिन्यू. हाँ हाँ. आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है. दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है. यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है. Yes, so I hope everyone has their water glass or water bottles with them. नहीं है तो आप जा. Yes. Yes. So let's see. All of us will take a sip of water in our mouth. We will keep it in the mouth for 1 second, 1 minute. मतलब जितना देरी आप रख सकते हो निगलने के पहले. I don't know how much time you people can keep. जैसे कि कभी अगर आपने वाइन टेस्टिंग किया है तो वाइन का होता है कि यू हैव टू स्विल इट इन योर माउथ, राइट? अगर आप लोग कोई किए हो तो आई डोंट वांट यू टू से इट टू मी, जस्ट रिमेंबर कैसे आप वाइन को स्विल करते हो. वैसे ही यू विल स्विल द वाटर इन योर माउथ, you will feel it in your mouth and then you will gulp it down. Okay, let's do this and then we will talk about it. ठीक है? Everyone please. मैं देख नहीं सकती हूँ and I will not ask all of you to come online क्योंकि I know you might not be comfortable, so it's okay. Yes, everyone. Are we back? यस मैम. तो कैसा लगा आपको शिखा जी? मतलब आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें तो डेफिनेटली आपको उस चीज की इम्पोर्टेंस और ज्यादा. नहीं, अभी मैं चाह रही थी कि आप लोग उसे पी के उसका टेस्ट से गौर करें. ओके. तो did you do that?
Yes. So how did you feel? Water का taste में आपको कोई difference? See, when we drink water, we just drink it. Gulp, Yeah, gulp, yeah, gulp. yeah. So today, when you are feeling, when you are swirling it in your mouth, thank you तो आपने बोला ठीक है. But when you are swirling it in your mouth, you will feel the taste. कैसा था पानी? It was RO था तो उसमें sweetness होगा. Iron content था तो उसमें थोड़ा सा taste रहेगा. तो how did you feel? मतलब ये तो basic मैं ऊपर का structure बता रही हूँ. लेकिन अगर आप अंदर जाओ तो पानी पी के हम बोलते हैं ना तृप्त हो गए. तृप्त. We have Yes. this saying कि हम आज पानी पिया एंड तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया. तो क्यों बोलते हैं हम पानी के लिए कि तृप्त हो गए? वो तृप्ति हमें चाय में या कोल्ड ड्रिंक्स में क्यों नहीं आती है, पानी में क्यों आती है? सोचिए थोड़ा. I can't explain. It's okay because it's very hard to explain. You will feel the taste. मतलब किसी को शायद स्वीट लगा होगा आज पानी, किसी को Yeah, अच्छा sweet लगा तो होगा. लगा. हाँ, तो हमने शुगर थोड़ी ना मिलाया था पानी में. आपने मिलाया और था क्या? लाइट भी लग रहा था. Yes. तो हाँ, see now you are getting words, right? तो सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होगी पानी के लिए कि जब वो उसे गल्प किया, नीचे गया वो, and then you will also feel when you are concentrating on it, you will also feel the water moving down your body from the pipe, foot pipe. आपको फील होगा वो ठंडक, वो फील होती है जब आप पानी पी रहे हो कंसंट्रेशन के साथ में. You will feel it going down your body. I hope you did that also. You feel that Yeah. also. हाँ. तो यही है कि आप अगर हर ये सिर्फ पानी का है. Now there are so many things you are having. हम बिना उसका टेस्ट फील किए, बिना उसे सिवॉर किए, we just gulp it down. हम इतने हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, इतने फास्ट हो गए हैं हम आजकल कि बस खाना है. ये इट्स अ कोरम फॉर अस नाउअडेज. तो we just gulp it down. Okay. Now आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि क्या बोल रही है बुक हमें. आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई भी चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें. और यदि आप कर सकें तो बस एक ही निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें. इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी. Yes. I never used to do that. मैं बहुत ही फास्ट, मेरी हैबिट है फास्ट खाने की. मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जब लोग खाने में इतना टाइम कैसे लगा सकते. That was my thinking before I did before I did this. But I have a friend, कॉलेज फ्रेंड. उसकी आदत है जब वो खाना खाने बैठता है ना हम लोग के सामने, व्हेन ही यूज्ड टू सिट, तो उस बंदे को किसी से बात नहीं करनी होती थी उस समय. एंड वो खाना ऐसे खाता था, मतलब उसकी आंखें बंद हो जाती थी. एंड ही यूज्ड टू लाइक लिटरली सिवोर. मतलब अगर वो एक छोटा सा समोसा भी खा रहा है ना, वो ऐसे खाता था कि जैसे पता नहीं क्या खा रहा है. आई हैव नो फीलिंग्स टू डिस्क्राइब हिज फेशियल एक्सप्रेशंस उस समय क्या होते थे. वो इतने इतने तल्लीन होके वो एक समोसा खाता था कि हम सब उसे देखते थे. ये अब तो गया इसका, हम 15 मिनट तक अब इसे देख सकते हैं. बट every day it was the same thing with him. Now today finally I have realized, not today, that this is the third time I have realized कि वो ऐसा क्यों करता था. He was savoring the food he was having. मुझे मतलब उससे फिर मैंने कभी इस बारे में हमने कभी बात नहीं की, बिकॉज इट वाज उस समय वी वर इन कॉलेज एंड वी वर लीस्ट बॉदर्ड कि ये कैसे खा रहा है या क्यों ऐसे खा रहा है. But later on, when we connected again on this Facebook and all, and जब हम लोग अभी वापस मिले recently, तो I just asked him कि ये ऐसे क्यों, why do you eat like this? I have seen you eating like this for such a long time now. तो he was like कि मुझे अच्छा लगता है, मैं फूड में क्या डाला है. अगर he is having a pasta suppose, तो he tries to find the taste, find the ingredients of the pasta by just swirling it in his mouth and thinking about it. इतना डिटेल में जाता है कि he will tell you कि क्या क्या उसमें है. तो what I put it to कि maybe he is very
शौकीन और उसे खाना बनाने का भी शौक है उस बंदे को, तो मे बी ही इज इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट एंड ही इज फाइंडिंग आउट स्टफ कि इसमें क्या है, इसमें अजवाइन का टेस्ट आ रहा है कि इसमें पार्सले का टेस्ट आ रहा है कि इसमें ऑरिगेनो का टेस्ट आ रहा है. ही जस्ट tries to take the ingredients separately in his mind and then he thinks about it. तो ये मुझे उस समय भी नहीं समझ में आया था when he was trying to tell me, because after a point I was like कि हाँ छोड़ो ठीक है चलो खाना खाते हैं. It was like that. But now after doing this book I realized the importance कि हमें क्यों सेवर करना चाहिए. Also I have seen my दादाजी when he used to eat his food. वो उनको 1 घंटा लगता था अपना लंच करने में. एंड ऑल ऑफ अस यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि ये कितना देरी तक खा रहे हैं. और उसके बाद में मतलब वो थैंक यू तो ग्रैटिट्यूड तो दोनों टाइम देते थे, हाथ जोड़ के, मतलब बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड. एंड इतना स्लोली ही यूज्ड टू chew the food, मतलब it was mind blowing, which now I have realized why he was doing it. And he had a very मतलब आरामदायक लाइफ जिसको आप बोल सकते हो. He set up the business, he did everything, he gave a very flourishing business to my uncles and my father. Everything was done by him. He moved from Bikaner to Calcutta. He was the person. So yes, now when I connect the dots I can see कि कैसे he flourished, कैसे he accomplished everything just by paying gratitude to food and water. इतना मतलब इतना कुछ खाली फूड और वाटर से. तो खाली फूड और वाटर नहीं है, दिस इज नॉट खाली फूड और वाटर. आप प्लीज remember this कि this is a very important and integral part of our system, food and water. Okay, and from today onwards please try to savor everything you are having. अगर हर बाइट नहीं तो एटलीस्ट फ्यू बाइट से स्टार्ट करिए एंड डोंट टॉक इन बिटवीन. ट्राई नॉट टू टॉक. हमारी आदत क्या होती है, हम शादियों में जाते हैं, we attend meetings. What we do, we take the plate, एक खाया और कैसे हो अंजना जी, कैसे हो शिखा जी, हाँ सुनीता दीदी क्या हुआ, we do that, right? बात करते रहते, कंटिन्यूअस वी टॉक. खा लो पहले 10 मिनट्स में खा लो, उसके बाद कर लो, एटलीस्ट एंजॉय द फूड. आधा टाइम तो हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, अब होस्ट को बोलना है हाँ हाँ बहुत अच्छा था, आपको पता भी नहीं है आप क्या खा रहे हो, बस बहुत अच्छा था बोल दिया, चल दिया, हो गया काम खत्म. होस्ट भी खुश कि वो खिला दिया, आप भी खुश कि आप खा लिए. डोंट डू दैट नाउ. स्टॉप इट राइट नाउ, स्टॉप इट. ओके, आगे बढ़ते बढ़ूं? हैं. हाँ, आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है. जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ. मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है. मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ. यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथ में एक जादुई धूल की डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं. so this is what she's telling us, the writer is telling us कि you can bless your own food before eating. Basically आप अपने फूड को ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, आप अपने फूड को ब्लेसिंग्स दो एंड देन यू हैव इट. तो ब्लेसिंग्स मतलब यू आर गिविंग इट पॉजिटिव एनर्जी. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू इज कि आप pretend कर रहे हो कि you have something magic dust in your hand and you're sprinkling it on the top of the food and then you are having it. तो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करने के बहुत तरीके हैं, आपको अपना तरीका खुद बनाना पड़ेगा. The book is telling us कि either you can sprinkle it like this with your hands or you can pretend that you have a shaker in your hand and you are pouring that. जैसे कि वो नमकदानी होती है ना, सॉल्ट एंड पेपर का जो हमारे पास डब्बी होती है जिसमें छेद होते हैं, सॉल्ट कम्स आउट. Everyone is understanding, right? I hope everyone is getting me what I'm trying to tell. तो वो Yes. आप उसको just pick किए and उसको just ऐसे किए. So सबको अपना तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा इसके लिए.
So let's, it is on you how you're doing it. What I do basically is, because I find that people will find it odd when I'm sprinkling the dust. So whenever I'm sprinkling the dust, it will come in the later chapters also. So I just blink my eyes 3 times, 1, 2, 3, and I sprinkle my dust. Because book आगे आपको बोलेगी कि you have to sprinkle magic dust on people also. So obviously you cannot go and do this. So either you wave your hands, or you twitch your nose like this, or you blink your eyes, something which you are comfortable with. You will have to decide what you want to do. मुझे जो सबसे comfortable लगा, I blink my eyes 3 times on that person or on my food. तो वो अगर मैं स्टार्ट भी कर देती हूँ खाना कभी और ऐसे करना भूल जाती हूँ, तो आई जस्ट ब्लिंक माई आईज. सो नो वन इज वाइजर अराउंड मी कि व्हाट आई एम डूइंग, बट आई एम डूइंग माई स्टफ. तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे स्प्रिंकल करने का तरीका ढूंढते हो. आगे बढ़ूं. यस. यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे. जब आपने खाना पिया था, मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें. यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस पर अभ्यास को कल दोहराएं. आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए. इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है. जीवन में ये वापस से हमें बोल रहा है कि आपको कृतज्ञता, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड बोलना, अपने अपने फूड को और अपने वाटर को किसी भी हाल में कम नहीं करना है और बढ़ाते रहना है. अगर आप भूल भी जाते हो तो आप इमेजिन करके ब्लेसिंग दे सकते हो लेटर ऑन. जैसे आप अभी गए, आपने लंच किया, लेकिन लंच करने के टाइम आपको याद नहीं आया कि आपने उसे ब्लेसिंग नहीं दी है या फिर आपने थैंक यू नहीं बोला है. So later on, whenever you remember, just say, go back in time, remember the part where you were sitting down for your food, in what clothes you were there sitting down, just visualize yourself and say thank you for the great food I had today. Just do that. तो at least आप आज के दिन का तो शुरुआत कर सकते हैं ना, कि yes आप blessings से आप gratitude दे रहे हो. Blessings अगर जितना दे सकते हो अपने food को दो, it is really effective. एंड इन फैक्ट आप खाना बनाते के टाइम भी यू कैन गिव ब्लेसिंग्स टू योर फूड. जब अगर आप खुद बना रहे हो तो आप अपना फीलिंग्स पॉजिटिव रखिए, एंड उसके बाद में व्हेन यू आर फाइनली, जैसे आपको लग रहा है कि अब इसमें धनिया पत्ती डालना है मुझे, तो धनिया पत्ती डाला, उसके बाद में वापस स्प्रिंकल योर हैंड्स ऑन टॉप ऑफ इट एज इफ यू आर पोरिंग द मैजिक डस्ट ऑन इट. यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर पोरिंग द मैजिक डस्ट ऑन इट. दिस इज मतलब it enhances the taste. I don't know how, but it does. I've been doing it for last 45 days now, and I have a breakdown in my family right now. My father-in-law is suffering from a hip ball fracture. So whenever I take food to him, I do this. ये आपको लेटर चैप्टर में आएगा कि कैसे आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप अपने लिए करिए. आज से आप पहले अपने लिए करिए, और अगर आप खाना बना रहे हो तो आप खाने में डालिए. ठीक है. जीवन में भोजन तथा पानी. जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है. और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे. तो when you will feel the gratitude, you will see the magic happening. Okay. जादुई अभ्यास क्रमांक या जादुई अभ्यास क्रमांक 8. जादुई तत्व. फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने. 10 नियामतों की सूची बनाएं. लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें. सेकंड, आप कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें. यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं. थर्ड, आज रात सोने से पहले
ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आज आपको बेसिकली क्या करना है, आपके ब्लेसिंग्स लिखने हैं सुबह। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा। तो आप यू कैन टुडे लाइक यू कैन रियली थैंक द फार्मर्स, द क्रॉप्स, द मैन्युफैक्चरर्स, द योर शॉपकीपर्स फ्रॉम whom you buy। आपको नाम याद होगा अगर किस शॉप से आप लेते हो तो उसे, मतलब दिस बुक इज एक्चुअली हेल्पिंग यू एवरी डे टू थैंक सर्टेन पीपल और सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ which are blessings to you। without them, मतलब यहाँ तक कि मैंने तो डेयरी मिल्क को भी थैंक किया है। I love dairy milk, so I have thanked that also। so whatever you want to thank, you can thank, okay। if you have not written your blessings till now, you can write in this manner also 10 blessings। उसके बाद में आज का तो बहुत ही practice is very simple। you just have to feel gratitude for your food and drink, and जहाँ तक possible हो, this book is saying जहाँ तक possible हो और या आप चाहते हो तो, but I will insist that आज आप जो भी खाएं उस पे आप ऐसा करें कि आप magic dust डाल रहे हो। see, now you are slowly turning into a magician, so you should come into that habit abracadabra types, okay। so जितना आप करोगे उतना आपको ही फायदा होगा, आप उतने ही अपने ड्रीम्स के और क्लोज होते जाओगे। तो behave like a true magician from today onwards। sprinkle magic dust on your food and drink whenever you are having it। और सोने से पहले you have to take the magic rock in your hand and find your the happiest moment of the whole day and then sleep। Any doubts? जादुई धूल मतलब थैंक यू कहते रहना। नहीं, जादुई धूल मतलब इट इज मैजिक डस्ट जो आपके पास में इमेजिनेशन में है, आपके इमेजिनेशन में है, और आपको क्या करना है, उसका छिड़काव करना है आपको चीजों पे, खाने पीने की चीजों पे। तो जैसे आप सपोज करिए अभी खाना खाने बैठे हो एंड यू आर हैविंग दाल चावल, तो व्हाट यू विल डू इज you will just pretend that you are sprinkling the magic dust on top of your dal chawal। just sprinkle it। जैसे आप कुछ भी स्प्रिंकल करोगे ना, सॉल्ट आप डालते हो या फिर आप धनिया पत्ती बुरकाते हो, तो काली मिर्ची डालते हो टोस्ट पे, वैसे ही यू जस्ट हैव टू स्प्रिंकल, यू जस्ट हैव टू मेक अ मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स। खाली आपको अपने हाथ घुमा के एक इमेजिनरी मूवमेंट करना है, बनावटी मूवमेंट, कि हाँ आपने मैजिक डस्ट डाला। दिस इज द वे यू आर ब्लेसिंग योर फूड। ग्रेटिट्यूड इज डिफरेंट, ग्रेटिट्यूड में आप थैंक यू बोलते हो, और ब्लेसिंग इज डिफरेंट, आप ब्लेस कर रहे हो अपने खाने को, खाने से पहले आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो। तो ब्लेसिंग का फॉर्म इज sprinkling of magic dust on top of it। is it clear, Rajni ji? Yes, yes. हाँ। anything else, anyone? anything else anyone wants to ask? या फिर कोई शेयरिंग है किसी के पास कल के लिए, हाउ यू फेल्ट आफ्टर यू डिड दिस। कल सुबह आप लोगों ने, आई होप yesterday you did your practice about that कि लिखना था ना 10 चीज ग्लैड नेगेटिव सिचुएशन के लिए, why we are grateful for 10 positive things about a negative situation। I hope you people did that yesterday and then you did your gratefulness की negative situation में बोल के gratefulness देना। I hope सबने किया है वो दोनों चीज। Yes। Yes। Okay। and Now, I saw even that movie yesterday. It was a nice one. Pollyanna, yes, Yeah. it's a beautiful movie, it's a beautiful movie। I will still say everyone to watch that movie। उसमें आप ऐसा सीखोगे, मतलब कि वो लड़की कैसे कैसे पूरे विलेज को चेंज कर देती है, एंड कैसे फिर जब उसके साथ में ट्रेजेडी होता है तो कैसे लोग आके उसको चेंज करते हैं। दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट द मूवी, कि कैसे ग्लैड गेम खेल के आप माहौल को खुशनुमा बना सकते हो, खुशनुमा बना सकते हो।
Actually, the catch of the movie was the same thing. Like, वो पोप बोलते हैं कि कितना भी खुशनुमा इंसान हो, जब उसके साथ ट्रैजिक कुछ होता है तो वो डिप्रेशन में चला ही जाता है. Yes. But then how things, then that was really the catch, and I was really wondering क्या होगा इसका end. Yes. And that was really good कि फिर वापस लोग आके उसको gratitude देके, and then they like bring her back. That was a catch from the movie I took हाँ, तो yesterday. yesterday I didn't want to tell the ending, इसलिए मैं नहीं बोली, लेकिन आज क्योंकि रंजना जी देख के आए हैं तो obviously we need to discuss it. तब मैंने ये बात बोली कि कैसे जब उसके साथ tragedy होता है तो all the people around her play the glad game with her and she's back on. She's back on. बाकी details के लिए please movie देखिएगा. Yes, she faces a tragedy in her life, but she comes back from it because other people जिसको उसने help किया था, जिसको उसने positivity दी थी, तो whatever you give come backs to you. This is the example the movie is setting कि आपने positivity दी, आपने happiness दिया, तो वो आपको किसी न किसी form में आपको वापस आएगी. कैसे आती है ये movie आपको बताता है, चाहे वो glad game के द्वारा आए, चाहे कैसे भी आए, but it will come back to you. Okay. Anything else anyone wants to ask or share or anything? तो आज का प्रैक्टिस तो बहुत ही सिंपल है. यू ऑल कैन डू इट मतलब आराम से एंड कंटिन्यू विथ योर अर्लियर प्रैक्टिसेस आल्सो. व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग यू कैन डू. जो आप कर चुके हो उसमें से भी अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो. ऐसा कोई हिडन रूल नहीं है, रिटन रूल नहीं है कि यू कैन नॉट डू. यू कैन कंटिन्यू विथ व्हाटएवर प्रैक्टिस यू वांट. Okay, so let us say our gratitude to whomever so we want to. Yes, हो गया gratitude देना everyone. Yes. So we will just take our leave then. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mrinal. Thank you, Mrinal. Thank you शिखा जी for reading. अच्छा एक और बात, किसी को Thank प्रॉब्लम you. हुई क्या हिंदी में पढ़ने से? No, it was very clear. नहीं. Okay, then we will just keep this up. We will go in English and Hindi both. Okay. चलो. Bye everyone. Have a Chalo, nice day. bye. Thank you. Bye.